हेलो बेटा, सुनाई दे रहे? यस सर। Yes, हाँ, sir. बहुत अच्छा है। यस सर। ओके, गुड। रेडी है सब लोग? क्लास स्टार्ट करेंगे। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहा था? पॉलीगन स्टार्ट किए हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो पॉलीगन्स में हम क्या क्या फॉर्मूलाज देखे हैं? फर्स्ट, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन कितना है? इज इक्वल टू n minus 2 times 180 degrees, right? Second, sum of external angle, sum of external angles of a n-sided polygon कितना होगा? 360 डिग्री। So ये sum of external sides जो है वो बदलेगा नहीं. This is always equal to 360 degrees. For the third formula, बोलिए. नंबर ऑफ डायगोनल। Third formula क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स n minus 3 by 2। into n minus 3 by 2. Good. Number of diagonals, right? Number of diagonals of a n-sided polygon is equal to n into n minus 3 by 2. सबको जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है बेटा? या थोड़ा सा डार्क करना है? यस सर। गुड। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला क्या है? each interior angle of a regular so each interior angle of a regular n-sided polygon. रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है बेटा? Sir, the polygon whose sides and angles are equal. whose sides are equal and also angles are equal, वो रेगुलर पॉलीगन है. इसका आंसर है n minus 2 times 180. ये टोटल सम है. बाई n किया तो आपको ईच एंगल आ जाएगा, राइट? एंड ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular n-sided polygon is equal to कितना है? Each exterior angle 360 कितना by है? n. 360 degrees by n. हो गया. So these are the 5 formulas which you need to remember for this. sir please chapter. wait हाँ? sir please wait हाँ, ये नोट कर लीजिए अच्छे से. yes sir noting नोट कर लीजिए. आवाज So question start करेंगे बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. So each first question, each exterior angle of a dash sided polygon is. को 3 ब्लैंक्स है. So first is 8
next is 9 and 12, sorry, regular polygon. Okay, so each Sir, can you exterior please angle repeat the question? of a 8-sided regular polygon, 9-sided regular polygon, 12-sided regular polygon. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है? What is first answer? बोल सकते हैं बेटा, आंसर क्या है? सिंपली द फॉर्मूला इज 360 by n, है ना? ये वाला फॉर्मूला है ना? Sir, first answer 45 degree, 45. second so answer 360 by 40 8. degree, and third answer 40. 30 degree. हाँ, बहुत अच्छा है, यही है ना फॉर्मूला? सो 360 by 8 कितना है? 45 डिग्रीज. दिस इज 9-sided पॉलीगन का 40 डिग्रीज. इसका कितना? 30 डिग्रीज. क्लियर है? Yes, sir. बहुत बेसिक फॉर्मूला है. Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन is it possible to have a regular polygon? Is it possible to have a regular polygon whose exterior angle is 25 degrees? क्वेश्चन समझ में आ रहे? पूछ रहा है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है 25 डिग्रीज हो. ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? देखिए, इफ पॉसिबल, क्वेश्चन बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल. मैं बोल रहा हूं इफ इट इज पॉसिबल लेट इट बी ए एन साइडेड पॉलीगन. समझ में आ रहे? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ एक्सटीरियर एंगल एस 25 डिग्रीज. तो मैं पहला क्या सोच रहा हूं, अगर वैसा कुछ पॉलीगन होता है तो उसका कुछ ना कुछ साइड्स होगा. So let it have n sides. Okay, this implies according to the formula क्या होना चाहिए? n sided regular polygon का exterior angle कितना होता है? 360 by n, right? Sir, equation is 360 by n equal to 25. हाँ सही है ना, वही करना है ना. इक्वेशन क्या होगा? देखिए, n sided polygon का each exterior angle is 360 by n, बट क्वेश्चन में दिया है कि exterior angle 25 होना चाहिए. So 360 by n should be equal to 25. समझ में आ रहे? So सॉल्व किया तो so this implies n is equal to 360 by 25. So अच्छे से कैंसिल हो जाएगा. 5 5s are 5 70. Sir, 14.4. 2s are 14.4 आ रहा है ना. इसका मतलब Yes, sir. कितना साइड्स होना चाहिए? How many sides should be there? You should have 14.4 sides. ऐसा हो सकता है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, है ना? 15, sir. But Sir, it should have 15 n side. should Or be 13. an integer, right? n cannot be a number of sides. Points में तो नहीं हो सकते ना. So n should be an integer. This implies it is not possible. Conclusion समझ में आ रहे? अगर possible है तो उसमें 14.4 sides होना चाहिए. वैसा तो नहीं हो सकते. Hence it is not possible to have a regular polygon
whose exterior angle is 25 degrees. समझ में आ रहे? अगर समझ में आए तो नोट कर लीजिए. सर बोलिए बेटा. सर ये नंबर ऑफ साइड्स का नेगेटिव नंबर्स हो सकता है? नहीं, नेगेटिव भी नहीं हो सकते. मैं ऐसे ही लिखा था. इंटीजर मतलब अच्छा नंबर तो होना चाहिए ना. क्या लिखना चाहते हैं आप? सर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर लिखेंगे क्या? ठीक है, लिख सकते हैं. नेचुरल नंबर अगर ऐसा है तो 1 हो सकता है क्या आंसर? सर 2 भी नहीं हो सकता. और अच्छे से बोलिए. नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए ना. Yes, sir. मतलब अगर बहुत स्पेसिफिकली लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं. क्लियर? यस सर. गुड. आगे जाएंगे. नोट किया? यस सर. Yes, sir. अगर Yes, नोट sir. Yes, sir. नोट किया तो थोड़ा सा हैंड रेस कर लीजिए. अगर हो गया तो हम आगे जाएंगे. नोट किया? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is similar question. Is it possible to have a regular polygon? Is it possible to have a regular polygon whose interior angle is 45 degrees? Is it possible to have a regular polygon whose internal angle is 45 degrees? ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं बेटा. सो इसमें डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिखता हूँ. व्हाट इज द इक्वेशन करस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? बोल सकते हैं. ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन फॉर्मूला क्या है? n Sir, minus n 2 minus 2 times into 180 by n. 180 by n. ये कितना होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? 45. 45 होना चाहिए. राइट. सो 45 कितना बार 4 टाइम्स कैंसिल हो गए. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तो 4n minus 8 is equal to n. राइट. समझ में आ रहे? सो 3n is equal to 8 आ रहे हैं. n is equal to कितना आ रहे हैं? 8 by 3. 2 and 1/3. 2 and 2/3 है ना. समझ में आ रहे? Yes. सो पॉसिबल है या नहीं? Yes. And not possible. No, sir, not possible. No, sir. So this implies not possible. देखिए एग्जाम में अच्छा सा लिखना पड़ेगा. एग्जाम में फर्स्ट स्टेप लेट इट बी ए एन साइडेड पॉलीगन वो लिखना है. इक्वेशन क्रिएट करना है. यू गेट द आंसर. n is not a natural number greater than or equal to 3, hence it is not possible. ऐसा करके लिखना पड़ेगा. क्लियर है? What is the minimum possible Sir, किसी के
चिल्लाने का बहुत आवाज आ रहा है, कौन डिस्टर्ब हो बात रहा कर है। रहे हैं बेटा? बात मत करिए। सिद्धार्थ भट्टाचार्य, चुप रहिए। What is the minimum possible interior angle of a regular polygon? एक रेगुलर पॉलीगन का what is the minimum possible measure of the interior angle? कैसे एनालिसिस करिएगा बेटे इस क्वेश्चन का? What is the minimum possible interior angle of a regular polygon? कोई आइडिया दे सकते हैं इसका कैसे करेंगे? Anybody? हाँ या ना? किसी को कुछ आइडिया आ रहे? No, sir. नो, बहुत अच्छा है। और किसी का यस, किसी का आंसर है? देखिए बेटा, ये जो है ऐसा क्वेश्चंस आपको सोचना पड़ेगा। दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न। अभी तक जो पहला जो भी क्वेश्चंस किया था अभी तक, ये क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं। So this is an example of a question where you need to think by yourself. Sir, interior angle is equal to 180 degree and minimum side is of a regular polygon is equal to 3. So 180 by 3 is equal to 60 degree. Okay, ठीक है, बट पूरा बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, रफ एनालिसिस किया। देखिए, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, है ना क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? What is the formula for interior angle of a regular polygon? N into n N minus minus 2 times 180 by, into 180 degree सही कि नहीं? n. क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन है अभी हमारा कि इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू क्या है। देखिए, n के प्लेस में अलग अलग नंबर्स पुट किया तो अलग अलग इंटीरियर एंगल्स आएगा। सबसे कम कौन सा n के लिए आंसर आएगा, दैट्स द क्वेश्चन। इसका मतलब है, ध्यान दे दीजिए, you need to find, what do you need to find? You need to find the smallest value of, right? You need to find the smallest value of n minus 2 times 180 by n. सही कि नहीं? हाँ ना? Yes, sir. Yes, You sir. need to find the Yes, smallest value of this Yes, sir. expression. But यहाँ Yes, प्रॉब्लम क्या है देखिए, अब ये पूरे का स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के इंटू 180 कर लेता हूँ। ठीक है, 180 तो है, हर बार है। n जैसा चेंज हो रहा है, ये वाला फ्रैक्शन चेंज हो रहा है ना, सही कि नहीं? yes, Yes, sir. एज n Yes, इज sir. चेंजिंग, ये 180 तो चेंज नहीं हो रहा है। जो भी नंबर यहाँ आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे छोटा वैल्यू चाहिए तो इस फ्रैक्शन का सबसे छोटा वैल्यू चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes, अब sir. इस फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व n minus 2 by n, इसको ऑब्जर्व करेंगे आराम से। क्लियर है? Yes, sir. इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. I want the smallest value of this.
बट प्रॉब्लम क्या है देखिए, इस फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, राइट? जैसा n बढ़ रहा है न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, सही है कि नहीं? Yes. Yes, sir. जब न्यूमरेटर भी चेंज हो रहे हैं डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहे हैं, फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? जब न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, कैन यू गेस हाउ द फ्रैक्शन चेंजेस? फ्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा, गेस कर सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक फ्रैक्शन है, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, सही है कि नहीं? Yes, sir. सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो Less. Less. सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू Decrease. कम Decrease. हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब मान लीजिए न्यूमरेटर बढ़ रहे हैं डिनोमिनेटर कम हो रहे हैं, तब क्या होगा? ध्यान दे दीजिए, अलग 4 ऑप्शन है। देखिए मैं केसेस करता हूं, देखिए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। ओके, एक बात ध्यान दे दीजिए, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन क्या होगा? Increase. Increase. बढ़ेगा। बहुत अच्छा है, इजी है। डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन क्या होगा? Decrease. Decrease. डिक्रीज होगा। मेरे सिंबल समझ में आ रहे? Yes, sir. अब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहे, सॉरी न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहे डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहे, तब क्या होगा? Sir, increase. Increase. इंक्रीज होगा ना, क्योंकि Yes, न्यूमरेटर sir. इंक्रीज किया तो भी इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज किया तो भी इंक्रीज होगा, सो इफेक्टिवली इंक्रीज होगा। तो न्यूमरेटर कम हो रहे डिनोमिनेटर बढ़ रहे, तब क्या होगा? Decrease. 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 डिक्रीज हो गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रॉब्लम यहाँ आएगा, देखिए अब प्रॉब्लम आएगा, न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहे डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहे, न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहे डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहे, तब क्या होगा? The same. Sir, increase. बोलिए अब क्या होगा? Sir, decrease. Sir, The increase. same. Sir, same. Increase. इंक्रीज या डिक्रीज? इसमें मेरा आंसर है कैनॉट से। वो नंबर इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज। न्यूमरेटर कितना इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूमरेटर इंक्रीज से फ्रैक्शन इंक्रीज होने के, ठीक है, टेंडेंसी दिखाएगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज किया तो फ्रैक्शन डिक्रीज होने का टेंडेंसी दिखाएगा। अब ये दोनों के बीच में फाइट होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में फाइट होगा। एक आदमी उसको ऊपर खींच रहा है, एक आदमी उसको नीचे खींच रहा है, सो कौन जीतेगा? Not possible. कैनॉट से, Cannot say. ठीक है, जो ज्यादा मजबूत है वो जीतेगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो कौन ज्यादा मजबूत है वो कैसे पता चलेगा? Sir, by seeing the values. हाँ, Sir, वो by पर्टिकुलर seeing the केस, value. उस पर्टिकुलर केस में देखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का मैच खिला के देखना पड़ेगा, सही क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इंडियन टीम स्ट्रांग है कि या ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रांग है क्रिकेट में? Sir, Australian team. वो तो नहीं बोल सकते ना, दोनों को मैच खिला के देखना पड़ेगा ना मुझे, सही जो कि नहीं? ज्यादा प्रैक्टिस करे। हाँ, दोनों का मैच खिला के देखना पड़ेगा मुझे, क्लियर? अब यहाँ प्रॉब्लम देखिए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जैसा n चेंज करता हूँ, n बढ़ाता हूँ, n-2 भी बढ़ेगा, n भी बढ़ेगा ना। अगर n बढ़ रहा है तो n-2 का वैल्यू भी बढ़ेगा, n का वैल्यू भी बढ़ेगा, सही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? व्हाट इज द आंसर? As n increases, n-2 also increases, n also increases. So what happens to this fraction? ये fraction बढ़ेगा या कम होगा? Sir, increase.
increases, sir. Sir, Sir, increase. देखिए बेटा अभी पूरा सर पूरा कहानी सुन लिया, डिक्रीज। कैनॉट से होता है ना बेटा। न्यूमरेटर अभी तक वही कर रहा है ना, न्यूमरेटर भी बढ़ रहे डिनोमिनेटर भी बढ़ रहे, तो फ्रैक्शन बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये n बढ़ रहा है तो n-2 भी बढ़ेगा, n का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो n-2 n क्या होगा, बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, इसको सिर्फ इसको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि कौन जीतने वाला है, इसके लिए यू हैव टू डू ए फर्दर एनालिसिस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. क्या Yes, sir. देखिए ये समझना है कि आप अभी ज्यादा कर नहीं सकते हैं इसके ऊपर, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मैं काम कर सकता हूँ कहाँ मैं काम नहीं कर सकता हूँ, दोनों समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या नहीं? हम्म Yes, sir. राइट, Yes, sir. नोट किया? Yes, Yes, sir. sir. मेरा पेज कंप्लीट हो गया, दूसरा पेज में जा रहा हूँ मैं, ये निकालूं? Yes, sir. ये निकालूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 2 मिनट नोट कर लीजिए। Sir. Sir. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। ओके बेटा, सुनाई दे रहे? Sir. हाँ बेटा बोलिए। सर अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिक्रीज होगा तभी भी तो हम लोग नहीं बोल सकते सर कि वो इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो अब वही अभी फर्दर एनालिसिस करेंगे और दूसरे तरीके से देखेंगे, वैसा देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरे तरीका देखिए। अब n-2/n कोई भी फ्रैक्शन को एनालिसिस करना है तो अब ये ट्राई करना है कि वेरिएशन जो है इधर न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, तो उसका एनालिसिस करना इजी है। तो मैं n-2/n को मैं क्या करता हूँ, देखिए n-2/n इज इक्वल टू n/n -2/n बोल सकता हूँ, यस सर। तो दैट इज इक्वल टू 1 - 2/n बोल सकता हूँ। यस सर। तो Yes, sir. स्क्रीन अच्छे से दिख नहीं रहा सर। क्या है बेटा? यस सर सर। स्क्रीन अच्छे से दिख नहीं रहा। अब दिख रहे? हाँ सर। यस सर। सो n-2/n को 1 - 2/n लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. अब इसको एनालिसिस करना इजी है बेटा, क्योंकि 1 जो है वो कांस्टेंट हो गया, वो तो चेंज नहीं हो रहे।
अब सिर्फ वेरिएशन जो है इसका डिनोमिनेटर में है, देखिए। अब मेरा एनालिसिस देखिए, फॉर n minus 2 by n to be smallest, अगर n minus 2 by n smallest होना चाहिए तो this implies 1 minus 2 by n should be smallest, सही कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि दोनों सेम है ना, ये और ये तो सेम है। This implies 2 by n should be largest, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्टेप कितने लोग को समझ में आया? सर मुझे समझ नहीं आया सर। देखिए 1 में से आप ज्यादा निकाला तो वैल्यू कम होगा या कम निकाला तो वैल्यू कम होगा, सर ज्यादा। है ना? 1 से ज्यादा निकालने से वैल्यू कम हो जाता है ना, सो आपको जितना ज्यादा निकाल सकते हो उतना ज्यादा निकालना पड़ेगा 1 से। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। दिस इम्प्लाइज अगर 2 by n सबसे बड़ा होना है तो n शुड बी स्मॉलेस्ट। ये फिर ये समझ में आया? देखिए यही मैथ्स में अच्छा चीज है, लॉजिकली आप हाँ, एक सर। से दूसरा स्टेप में जा सकते हैं। n डिनोमिनेटर में है ना, Yes. एक फ्रैक्शन सबसे बड़ा होना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? The smallest. सबसे छोटा होना चाहिए, Smallest. Smallest. सही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. n Yes, should be sir. smallest. This implies so n का smallest value क्या है? बोल सकते हैं n का One. smallest value क्या है? 3. बहुत अच्छा है, 3 है ना? एक पॉलीगन में कम हाँ, से सर। कम कितना साइड्स होना चाहिए? 3 साइड्स होना चाहिए। 3. Yes, sir. So for n minus 2 by n to be smallest, n क्या होना चाहिए? 3. 3 होना चाहिए, समझ में आ रहे? Yes, sir. This implies the smallest value of n minus 2 by n is, n के प्लेस में 3 पुट करिए, 3 minus 2 by 3, that is equal to 1 by 3। समझ में आ रहे? Yes. हाँ सर। Clear? Yes, sir. This implies Yes sir. हमको क्या चाहिए? n minus 2 by n into 180 का स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, Yes, sir. right? Yes, sir. The smallest value of n minus 2 by n into 180 degrees is 1 by 3 times 180 degrees, which is equal to 60 degrees. Clear है? Yes, sir. इतना करने के बाद भी जो पहला one of the student has given the same answer, है ना? स्टार्टिंग में एक बच्चे का सेम आंसर आया था ना? Yes, sir. बट लॉजिक में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. सेम आंसर आ सकते हैं बट गलत लॉजिक से भी सेम आंसर आ सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स हियर। Yes, Yeah. sir. Sir, why 2 by n should be largest? 2 by n should be largest. I cannot understand. अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो है आपको थोड़ा सा ये रीजनिंग जो है, यूजुअली यू विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू दिस मच रीजनिंग इन 8th क्लास। 8th क्लास में यू विल बी कंसिडर्ड वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स, ठीक है? आपको बहुत, ठीक है, बच्चा समझते हैं जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, तो इतना रीजनिंग नहीं देते टेक्स्ट बुक में। उसका रीजनिंग भी, टेक्स्ट बुक का रीजनिंग भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? एक्चुअली देखना है तो इतना रीजनिंग करना पड़ता है इसका।
क्लियर? बट अभी क्या करेंगे, छोटा बच्चा वाला रीजनिंग करेंगे। इसी का आंसर देखिए एक और बार, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना है, 3 minus 2 by 3 into 180 degrees, right? Which is 60 degrees. Interior angle of a quadrilateral कितना होता है, regular 360. 4 minus 2 by 4 into 180 degrees each interior angle, so 90 degrees आएगा. Of a pentagon 5 minus 2 by 5 into 180 degrees, right? 3 by 5 into 180 degrees 36, 108 degrees हो रहे हैं. What is the observation? इंटीरियर एंगल का वैल्यू जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? सर बढ़ रहा है। सो 8th क्लास में आपका टेक्स्ट बुक का रीजनिंग देखिए, आपका टेक्स्ट बुक में देखिए, ये आपका टेक्स्ट बुक का रीजनिंग, एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन डिक्रीजेस, ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स इंक्रीजेस, therefore each of the interior angle decreases. Hence equilateral triangle will have minimum interior angle which is equal to 60 degrees. ये एक तरीके का रीजनिंग है, ये भी कर सकते हैं आप एग्जाम में. क्लियर है? सर इसका मतलब नहीं समझे सर. हाँ सर इसका मतलब नहीं समझे. मैं समझाता हूँ. देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 by n है ना? यस सर। n बढ़ रहा है तो एज n इंक्रीजेस एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एज n इंक्रीजेस एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, डिक्रीजेस. है कि नहीं? n डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा. एज n इंक्रीजेस एक्सटीरियर एंगल डिक्रीजेस, राइट? क्लियर? विच इंप्लाइज इंटीरियर एंगल क्या होगा, सुनाई दे रहे? हेलो यस हेलो सर। सर. यस सर. यस सर। n इंक्रीज हुआ तो एक्सटीरियर एंगल कम हो गया क्योंकि बाय n है. अगर एक्सटीरियर एंगल कम हो गया इंटीरियर एंगल क्या होगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के कितना होगा, 180 डिग्री. 180 होना चाहिए. एक बढ़ गया तो दूसरा छोटा होना चाहिए. यस तो एज एक्सटीरियर एंगल डिक्रीजेस इंटीरियर एंगल इंक्रीजेस. समझ रहे? इसका मतलब n बढ़ रहा है तो इंटीरियर एंगल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. सो स्मॉलेस्ट इंटीरियर वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, n सबसे कम होना चाहिए, n3 होना चाहिए, इक्वल ट्रायंगल हो जाएगा. क्लियर है क्या नहीं? यस सर। गुड. आगे जाएंगे. हाँ सर. सर हाँ सर पहले जो एक बताए पहले जो प्रोसेस बताए थे उधर आप लिखे थे ना कि n शुड बी स्मॉलेस्ट, तो वो और एक बार बता सकते हैं n कैसे स्मॉलेस्ट हो रहा है? देखिए 2 by n बड़ा होना चाहिए. यस सर। सो n डिनोमिनेटर में है ना, एक फ्रैक्शन बड़ा होना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना. अच्छा यस सर। डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बढ़ेगा, राइट? यस सर। यस क्लियर है? यस सर। नोट किया, यस सर। निकाल सकता हूँ. सर Yes, नीचे वाला और एक बार sir. दिखाइए. हाँ सर.
निकालो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So next question, मैं कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ, उसमें अननोन्स जो है आप निकालना पड़ेगा। 60 डिग्रीज, 110 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, x कितना है? सबका वीडियो पॉज हो गया है। इस डायग्राम में x फाइंड करना है। सर सर हम्म, सर सेकंड वाले फिगर में x और x माइनस दोनों का ही ये एक ही है ना? हाँ वैल्यू सेम है, दीज टू एंगल्स आर सेम। ठीक है। सर थर्ड फिगर में बी का सेकंड फिगर में डी एक्सटीरियर नंबर का क्या है? सो थर्ड फिगर में so जस्ट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी पूछ रहे हैं आपसे। नहीं सर, बी का एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये y है। अच्छा, कौन सा? सर 2 नंबर सर हाँ सर 2 नंबर फिगर में एक्स सर क्या लिखा है? डी x इंटीरियर एंगल 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ये भी 50 डिग्रीज है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में x कितना है बेटा, कैसे निकालिएगा? सर थोड़ा नीचे कीजिए, 3 नंबर दिखाइए। सर 70 डिग्री। ओके 70 degree. 70 degree. सो इसमें सम शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री। Degree. 360 सब कुछ degree. मिला के 360 डिग्रीज होना चाहिए। तो वहां से x आ जाएगा। Yes, sir. यस सर, कितना आ रहे हैं? Yes, 70. 20 डिग्री। x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज आ रहे हैं। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120, 120 डिग्रीज। 20. दिस इज 50, दिस इज 130, 130 डिग्रीज। Yes, sir. एंड टोटल सम कितना होना चाहिए? ये तो पेंटागन है ना, 540 degree. सम शुड बी इक्वल टू 540 डिग्रीज, राइट? सो 50 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 2x is equal to 540, right? 2x is equal to 240, x is equal to 120 degrees हो गया। क्लियर है? Yes, sir. So next इसका, ये तो डायरेक्ट आंसर है ना, इसमें तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? 360। 360. इसमें तो कुछ करने का जरूरत नहीं ना। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 degree. 360 डिग्रीज। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी मिलके 360 डिग्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो का इस चैप्टर हो गया बेटा, इतना ही है।
So I have done most of the questions of this chapter in your textbook. तो अभी आपका बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करना है, डाउट है तो अगला क्लास में पूछिए। क्लियर है? सर आप किस बुक से कर रहे हैं? मैं तो आर एस अग्रवाल से कर रहा हूँ बेटा, आप आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं या आपका कोई भी बुक से कर सकते हैं। ओके सर। सारा बुक्स में सेम वही कॉन्सेप्ट्स होगा। क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। गुड नाइट बेटे सबको। बाय सर, Good night. गुड गुड नाइट नाइट। सर, थैंक यू Thank सर, you. बाय sir. सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा सबको, बाय।